Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well on the live. In today's video I will be talking about again 70 daily use English sentences. So watch the video till the end. तुमने यह सब क्यों किया? Why did you do all this? I would like to tell you it is past and definite tense. Why did you do all this? मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. आई हेट माई सेल्फ. आई हेट माई सेल्फ. मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ. आई ब्लेम माई सेल्फ. आई ब्लेम माई सेल्फ. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. मैं खुद जाऊँगा. सो इट्स इंग्लिश विल बी आई विल गो माई सेल्फ. आई विल गो माई सेल्फ. मैं खुद चलाऊँगा. इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग अ कार. आई विल ड्राइव माई सेल्फ. आई विल ड्राइव माई सेल्फ. मैं खुद से नफ़रत नहीं करता हूँ. आई डोंट हेट माई सेल्फ. आई डोंट हेट माई सेल्फ. मैं खुद पर विश्वास नहीं करता हूँ. आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ. आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ. ज़्यादा पिज़्ज़ा मत खाओ. डोंट ईट पिज़्ज़ा too much because it is not good for health. Don't eat pizza too much. मैं खुद से बात कर रहा हूँ. When you have no one around you, so you prefer yourself to talk to. I am talking to myself. I am talking to myself. मैंने खूब मज़े किए. I enjoyed myself a lot. What will be its English? I enjoyed myself a lot. It is past indefinite tense and enjoyed is a second form of enjoy. मुझे अपने आप का परिचय देने दो. Allow me to introduce myself. Allow me to introduce myself. मैंने खुद सब कुछ किया. I did everything by myself. It means you didn't take anyone's help. I did everything by myself. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. So its English will be this will not be tolerated. This will not be tolerated. मैं अकेले कैसे जाऊँगा? If the way of going somewhere is risky and dangerous, so how will I go alone? How will I go alone? मैं कहाँ खेल सकता हूँ? So it means you are looking for a field where you can play any kind of outdoor games. Where can I play? Where can I play? लोगों को धोखा देना गलत है. It's wrong to deceive people. It's wrong to deceive मतलब धोखा देना. किसको? लोगों को. पीपल. दूसरों को गाली देना गलत है. It's wrong to abuse others. It's wrong to abuse others. It is a contraction of it and is. किसी की उम्र पूछना गलत है. It's wrong to ask someone's age. It's wrong to ask someone's age. ये हो चुका है. So it is present perfect tense. First of all, it has happened. It has happened. ये यहाँ हुआ. It happened here. It means you are indicating the place where any of the incident took place. It happened here. Next sentence, ये होता रहता है. It means something is everyday occurrence. So you can say it keeps happening. It keeps happening. और क्या हुआ? So most of the time you ask your friend like this way, और क्या हुआ? If you didn't attend your school, what else happened? What else happened? पहले क्या हुआ? What happened first? When you missed the starting point of something, so you can ask like this way, what happened first? क्या कुछ हुआ? Did something happen? Did something मतलब कुछ हुआ.
टेक प्लेस बोल सकते हैं या हैपन बोल सकते हैं, ठीक है। तुम काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव रियली वेल। इट इज़ अ गुड वे ऑफ सेइंग एंड प्रेजिंग समवन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, यू ड्राइव रियली वेल। सो हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस ऑफ अ डे इज मुझे तुमसे बहुत प्यार है या फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इमीडिएटली इफ यू नो। ये बहुत जल्दी हुआ, इट हैपन्ड too fast. It happened too fast. मैं कुछ नहीं समझ पाया। So its English will be I couldn't understand anything. I couldn't understand anything. Couldn't is a contraction of could and not. कुछ लोग नसीब वाले होते हैं। So without putting much effort, people get what they want. Some people are lucky. Some people are lucky. कुछ लोग बदनसीब होते हैं, आफ्टर पुटिंग देयर सफिशिएंट एफर्ट दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे वांट। सम पीपल आर अनलकी, सम पीपल आर अनलकी। उसने मुझे यह चीज़ नहीं समझाई। शी डिडंट मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग। शी डिडंट मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग। यही हुआ, दैट्स वॉट हैपन्ड। व्हाट आई एम टेलिंग, दैट्स वॉट happened. So the next sentence is ये मत होने दो, don't let it happen. Don't is a contraction of do and not. It is imperative sentence. Don't let it happen. मुझे बताओ क्या हुआ, tell me what happened. Tell me, मुझे बताओ क्या हुआ, what happened. अपनी आँखें खोलो। सो यू कैन ईजिली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, ओपन योर आइज। ओपन योर आइज। एकदम क्या हुआ, वॉट एग्जैक्टली हैपन्ड। इट मीन्स यू वॉन्ट टू नो द सिचुएशन, वॉट द एग्जैक्टली सिचुएशन वॉज। वॉट एग्जैक्टली हैपन्ड। बुरी चीज़ें होंगी, bad things will happen. When you are damn sure about something that bad things will happen, so you can surely say like this way. मैं बस मजाक कर रहा था। I was just kidding. I was just kidding. It is past continuous tense. पता लगाओ क्या हुआ, find out मतलब पता लगाओ, find out क्या हुआ, what happened. Find out what happened. मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। I want to become a businessman. I want to become a businessman. तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? Why did you phone me? Why did you phone me? उसने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द डोर एंड टॉकिंग टू समवन एंड समवन इमीडिएटली क्लोज द डोर, सो यू कैन से ही क्लोज्ड द डोर सडनली। ही क्लोज्ड द डोर सडनली। अपने दुश्मन को कम मत समझो। सो इट्स इंग्लिश विल बी डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। ये मुझ पर छोड़ दो। सो इट्स इंग्लिश विल बी लीव इट टू मी। लीव इट टू मी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सो इट्स इंग्लिश विल बी आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। वी हैव फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम मेरा फ़ोन चला सकते हो, यू कैन यूज़ माई फोन। कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज ओवर हियर, सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। यू कैन यूज़ माई फोन। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रो on trees. You have to put your effort for earning money. नल खोल दो। So its English will be turn on the tap. Turn on the tap. If you want to fill your bucket with water, so you are supposed to turn on your tap. And if the bucket is full, so you will say नल बंद कर दो after that. So how you will say in English? You will say turn off the tap. Turn off the tap. आपको अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। यू शुड नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। when someone is proven to be your friend, so he can say and that person can say immediately I am a friend. क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं?
आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, वो शायद गुस्सा है. सो यू कैन से ही इज़ प्रोबेबली एंग्री, ही इज़ प्रोबेबली एंग्री. नेक्स्ट सेंटेंस, वो शायद भूखी है. शी इज़ प्रोबेबली हंग्री. देयर इज़ नॉट 100% श्योरिटी दैट ही और शी इज़ डेफिनेटली हंग्री. ओके, वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग और गैसिंग. ये अच्छा आइडिया है. इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया. क्या हम अब जाएं? Should we leave now when you're taking somebody's permission in terms of going or leaving from somewhere? So you can say should we leave now? मेरा पेट भर गया है. So you can say in English I am full, I am full. It means you don't have any space in a stomach to eat food anymore. वो हमारे साथ खेलेगा. He will play with us, he will play with us. क्या ये ज़रूरी है? So you can ask is it mandatory? If you don't want to use the word that is mandatory out there, you can replace it with necessary. Okay, वो शादी कर रहा है. He is getting married. It is present continuous tense and ing is being used in the helping verb and the main verb. Okay, he is getting married. मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है. तो when someone is giving blessing to somebody, so usually they usually say my blessings are always with you, my blessings are always with you, either you touch my feet or not. तुम शादी कब करोगे? when will you get married, when will you get married. तुम कह सकते हो. It means you can give your opinion to something. You can say, you can say. ज़्यादा मत खेलो. Don't play too much. Rather than playing too much, if you will give that time to study, you will get the result in future. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. I will not leave you. If you don't want to use the word leave, you can replace it easily. किससे कर सकते हैं? spare से. I will not spare you. पहले मुझे खेलने दो. Let me play first. ये imperative sentence है. Let me play मतलब खेलना पहले. फर्स्ट, लेट मी प्ले फर्स्ट. क्या तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है? डू यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, डू यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट यू कैन फोन मी एंड आई कैन रिसीव योर फोन. यहाँ मत खेलो. डोंट प्ले हियर इफ दैट प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर प्लेइंग. इफ देयर इज अ बिल्डिंग एंड यू विल ब्रेक समबडीज विंडो एंड दैट इज रॉन्ग समथिंग. डोंट प्ले हियर. क्या तुम देख नहीं सकते? बहुत बार ऐसे हम हिंदी बोलते क्या तो दिख नहीं रहा है, या फिर क्या तुम देख नहीं सकते, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कांट यू सी, कांट यू सी. मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, आई नो इट वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस. सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल द ट्रांसलेशन टेंसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यहाँ खेलना बंद करो. स्टॉप प्लेइंग हियर व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी कंपाउंड. सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन इन अ लाइफ एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.